Hello everyone, welcome back to the Global Channel and I hope you all are doing well, you all are good. So in our last lecture we have completed our climatology and today we are starting with a very fresh new topic, that is oceanography. In last lecture we have completed our topic monsoon, in which we have done many theories like Monet's theory. Then we have done Yin's theory, El Nino, La Nina type of concepts we have covered. So today we are starting with a new topic, that is oceanography. In this topic, we'll study the structure of ocean, like ocean base, floor पे जितने landforms हैं, वो we'll study, and then we'll study the temperature, then we'll study the salinity, then ocean currents like warm current and cold current. So first let's start with the basic topic of oceanography. Okay, so here I'm drawing a diagram, something like known as continental shelf. Next we have continental slope, continental rise, abyssal plains, hills. These are flat topped, known as guyots. Next we have sea mounts, mid-oceanic ridges and trenches. एंड जितनी भी ये मैंने लाइक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, ये सारा अंडर द ओशन, अंडर द वाटर है, राइट, लाइक दिस. This is all water. Okay. Okay. So let's name all these. This is the continental shelf. Continental shelf. Next portion is this one. This is continental slope. Next, this is continental rise. Continental rise. This is abyssal plains. Abyssal plains. And these small hills, these are abyssal hills. This is known as Guyot. G-U-Y-O-T. And this is sea mount. In Hindi, samudri pahad we can say. Next we have mid-oceanic ridges and then we have trench. Now one by one we'll study all the features of these like guyots, sea mounts, mid-oceanic ridges, trenches, abyssal plains, continental slope and continental rise. So let's start with the continental shelf. Okay. So the continental shelf here, this is near the coastline and this is the part of continental crust. So if it is part of the continental crust, so it is, of course, it is, इसका जो origin है, it is made up of granite. Lighter density है 2 to 2.5 gram per centimeter cube. Okay. Next, अभी क्या है कि जो ये हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसकी डेप्थ होती है अप टू 200 मीटर्स एंड अप टू 200 मीटर्स यहाँ पे वेरी गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट इज रिसीव्ड. तो दिस इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस ऑक्सीजन. तो सनलाइट है, अबंडेंट है एंड ऑक्सीजन है. So we have good growth of planktons. प्लैंक्टन्स की बहुत अच्छी ग्रोथ है. अब प्लैंक्टन्स की बहुत अच्छी ग्रोथ है तो यहाँ पे हमें मेरीन और एक्वेटिक लाइफ बहुत अच्छी दिखती है. मेरीन लाइफ
बहुत अच्छे हमें फिशेस की यहाँ पे प्रोडक्शन दिखती है कि बहुत ज्यादा फिशेस हैं. नेक्स्ट वी कैन सी कोरल रीफ्स. सो बहुत ही ज्यादा लाइक इकोलॉजिकली एडवांस्ड, वी कैन से इकोलॉजिकली रिच रीजन्स कैन बी सीन हियर इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ. मैक्सिमम वी कैन से 90% ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस भी हमें इसी रीजन में दिखती है. मैक्सिमम जब हमारे पास मेरीन लाइफ बहुत अच्छी है, कोरल्स वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक कोरल्स वी हैव, सो हमें यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी भी दिखती है. मैक्सिमम लाइक जो स्कूबा डाइवर्स जो हम कहते हैं, है ना, लाइक ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट कोरल रीफ का जो हमारे पास बॉर्डर है, जो वहां का एरिया है, वहां पे मैक्सिमम टूरिस्ट जाते हैं, राइट. दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. नाउ विल डू continental slope. Okay, now we have continental slope. It's something like this. ये वाला जो पोर्शन है, this is continental स्लोप. अब कॉन्टिनेंटल स्लोप है, सो स्लोप मीन्स इसका जो हमारे पास स्लोप है वो बहुत ज्यादा स्टीप है. वी हैव स्टीप स्लोप, वेयर एज आई फॉरगॉट टू टेल यू कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ था उसका जो स्लोप था दैट वाज वेरी जेंटल. उसका एकदम से स्टीप स्लोप नहीं था. कॉन्टिनेंटल स्लोप का वी कैन से द स्टीप स्लोप है. तो अब स्टीप स्लोप है तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन नहीं होती, तो ये बेयर है. बेयर मीन्स कि यहाँ पे सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट नहीं होंगे. ओके, यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, विल विटनेस हियर टर्बिडिटी करंट्स. हमें यहाँ पे टर्बिडिटी करंट्स देखने को मिलेंगे. Okay, so these are underwater landslides. These are underwater landslides. अब underwater landslides है, यहां से कॉन्टिनेंटल शेल्फ में थोड़ी सी एक्यूमुलेशन हो रही है ऑफ सेडिमेंट्स, बट यहाँ पे स्लोप बहुत स्टीप है. तो जब स्लोप बहुत स्टीप होगा तो यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेट नहीं होंगे सेडिमेंट्स, तो ये ऐसे बहुत ही फास्ट रेट पे नीचे आएंगे. सो व्हाट विल हैपन हियर, वी हैव आल्सो कवर्ड दिस इन द लाइफ ऑफ अ रिवर, उसके स्टेजेस. तो यूथ स्टेज में उनमें बहुत ज्यादा पावर होती है और बहुत ज्यादा स्पीड में जाते हैं. उनमें क्या होगा कि वो यंग स्टेज में बहुत सारे लाइक डीप कैनियंस है ना, आई शेप यू शेप वैलीज बनाते हैं. सो हेयर ऑल्सो जो हमारे पास सेडिमेंट्स होंगे, ये जो हमारे करंट्स हैं, दीज आर कैपेबल ऑफ इरोडिंग. ये इस जो हमारी सी स्लोप है, इस सी स्लोप को ये इरोड कर सकते, इतनी इनकी कैपेबिलिटी होती है. अब जब इनको इरोड करेंगे तो यहाँ पे फर्दर फीचर्स बनते हैं सबमरीन कैनियंस. So features like submarine canyons can be seen. Submarine canyons. Okay. For example, Indus, Ganga, Congo River. Next we have Mississippi River. Canyons. इन गंगा रिवर ऑल्सो में कैनियन दिखते हैं. नेक्स्ट वी हैव इंडस रिवर, कॉन्गो, मिसिसिपी में भी हमें कैनियंस दिखते हैं, राइट. नेक्स्ट वी हैव कॉन्टिनेंटल राइज. अभी जो हमारे पास कॉन्टिनेंटल राइज है, ये भी हमारा कॉन्टिनेंट्स का ही पार्ट है. ये एक ट्रांजिशन जोन होता है, कॉन्टिनेंटल राइज. transition zone
at the edge of oceanic plain, ocean plain. अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था, दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज स्लोप, दिस इज राइज, और इसके बाद अबाइजल प्लेन, इसके बाद से हमारा ओशनिक प्लेन्स फ्लोर स्टार्ट हो जाता है. दिस इज कॉन्टिनेंटल राइज. यहाँ पे मोस्टली सेडिमेंट्स आपके एक्यूमुलेट होते हैं, राइट. कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स भी है, ओशनिक सेडिमेंट्स की भी यहाँ पे मिक्सिंग होती है. तो थोड़ा सा वी कैन से दैट दिस इज डेपोजिशनल फीचर. Depositional feature. Okay. Next we have abyssal plains. This is abyssal plain. Approximately 75% ये कवर करता है, एंड ये कंप्लीटली वी कैन से यहाँ पे फ्लैट रीजन है. ऑलराइट, दिस इज द फ्लैट रीजन. यहाँ पे डिपोजिशन भी हम कह सकते हैं, हो सकती है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइक फ्लैट फीचर है. इसके बाद जो हमें दिखते हैं दैट इज, अगर यहाँ पे डिपोजिशन नहीं हो रही है देन वी कैन से ग्योट्स, सी माउंट्स, मिड ओशनिक रिजेस. नेक्स्ट वी हैव ट्रेंचेस. वन मोर थिंग, अभी इससे पहले अबेसल प्लेन से पहले वी हैव स्टडीड, वी हैव कवर्ड कॉन्टिनेंटल राइज. वो हमारे पास होता है एट द एज ऑफ व्हाट, एट द एज ऑफ ओशन फ्लोर और ओशन प्लेन. बट इफ एट द एज ऑफ दिस ओशन प्लेन हमारे पास अगर ट्रेंच होती तो जो हमारे सेडिमेंट्स हैं वो यहाँ अबाइजल प्लेन्स तक ना आ पाते. वाई? बिकॉज जितने भी सेडिमेंट्स होते थे अल्टीमेटली वो ट्रेंच के अंदर चले जाते हैं. सो अबाइजल प्लेन में नो डिपोजिशन होती, तो सारे सेडिमेंट्स यहां पे जाते हैं. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट वी हैव ग्योट्स एंड सी माउंट्स. ग्योट्स एंड सी माउंट. जो ग्योट्स हैं एंड सी माउंट्स हैं, इसमें क्या है कि ये हमारे पास एक फ्लैट टॉप्ड है. इसका जो टॉप है दिस इज फ्लैट. तो फ्लैट होने के कारण यहाँ पे गुड मेरीन लाइफ दिखती है. वन मोर थिंग कि यहाँ पे मेरीन लाइफ क्यों दिखती है? वन, बिकॉज ये फ्लैट है. अनदर रीजन कि ये अपर वाले सरफेस से बहुत ही ज्यादा क्लोज है. जो वाटर का सरफेस है उससे ये बहुत क्लोज है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक वाटर है तो ये सिर्फ इसका डिस्टेंस इतना है, तो इसलिए यहाँ पे वी कैन सी अ गुड लाइफ, मेरीन लाइफ. नेक्स्ट जो हमारे पास सी माउंट्स हैं, ये यहाँ पे नो शार्प पीक है यहाँ पे, एंड दीज आर वॉल्केनिकली एक्टिव. एंड समटाइम्स क्या होता है कि जब ये लाइक वाटर से बाहर आ जाते हैं तो सॉरी एज एन आइलैंड इनको देखा जाता है. एंड दीज आर ऑलवेज volcanically active. Let me write it. Volcanically active. OO convergence जहां पे होती है, ओशनिक कन्वर्जेंस, मोस्टली हम कह सकते हैं वहां पे होते हैं. Volcanically active, we can say that these are associated with hotspots. All right, okay. Next is mid-oceanic ridges. Okay, next is mid-oceanic ridge.
Pen is not working. Mid-ocean ridges. These are the features of divergent plate boundaries. Divergent boundaries, we can say, why plate. Okay, we can write plate also, no problem. Divergent plate boundaries. And next is trench. Trench can be formed at oceanic and continental convergence or oceanic convergence. So these are the features, the oceanic features which we have covered here, and we have covered continental shelf, we have covered continental shelf, continental slope, continental rise. Next we have done abyssal plains, guyots, sea mounts, mid-oceanic ridges, and trench. One thing which special I have told you कि अगर जो हमारी ट्रेंच है वो ओशियन के प्लेन के एज पर है, इफ इट इज एट द एज ऑफ द ओशियन प्लेन, तो जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो सारे ट्रेंचेस में जाएंगे एंड अबिसल प्लेन्स में हमें सेडिमेंटेशन नहीं दिखेगी. So this is all which we have covered in today's lecture. So stay tuned for the next upcoming lectures, because in that I will be delivering you more informative things. For example, we will be covering the temperature of ocean, salinity in the ocean, and the currents like cold and warm currents of the ocean. So stay tuned till the time. Stay safe, stay healthy, and yes, keep revising whatever we have done in our last lecture. Thank you very much.